So my question is, you asked how to differentiate between delinquent behavior and aggressive behavior. So I was just wanting to ask you this one thing, that if a child is repeatedly engaging in aggressive behavior, he gets into a lot of spats with his friends, and maybe at home also he's being aggressive. But there is one child who would be guilty, feel repentant about it, and there's another child who does not quite feel guilty. Would that be a differentiating aspect? Is my question. Very, very valid observation. And often these are the things which become the bias or base of this confusion, whether or not to term a behavior as delinquent behavior. So, if I were to respond, unless and until a behavior is actually violating a norm or a law as laid by the society or the penal code, till that point, they do not term it as delinquent. They merely treat it as an aggressive behavior. But yes, the dilemma of classifying and putting these kind of behaviors in a particular channel of classification or for treatment or for addressing, that definitely is missing. And that is precisely what I'm trying to address today. Today, when I observe these social systems like family, schools are the most affected by delinquent, and rather I would say delinquent aggressive behavior. Henceforth, I would use the term as DAB, delinquent aggressive behavior, because I personally have experienced that aggression and delinquency is the part of the same continuum. They belong to the same area. But the bigger challenge is it is slowly but surely evolving as a challenge to the school systems and the family system, family organization itself. And most of us are clueless what to do, क्या करें. बट इससे पहले कि हम इसके बाकी पहलुओं में जाएं और असेस करें कि क्या डेलिंक्वेंसी है, क्या नहीं है, क्या कारण है, बच्चे के अंदर क्या बदलाव और कैसे आ रहे हैं और कैसे उन्हें रोक सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा एक चीज़ जो शायद हम सबको आज स्वीकार करने की ज़रूरत है. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है we means we parents and teachers, we foster delinquent aggressive behavior. How? Number one, we live with delinquency by observing silence on most of the observed behaviors. What I have noticed in my experience over the last 18-20 years is most of the parents and teachers, they tend to keep silent on the first or the second or the initial events. Maybe they give the benefit of doubt to the offender. Maybe they do not consider it as aggressive as they should be evaluating it as, or at times they simply believe perhaps it is a one-off event, but they live with delinquency by observing silence about it. Second, we adjust to delinquency. हम लोग कवर अप करते हैं, क्यों बात बढ़ाई, क्यों इस बात को आगे तूल दिया, ये वाले एटीट्यूड से हम डेलिंक्वेंसी के साथ अपने जीवन को एडजस्ट करने लगते हैं. एंड तीसरा, वी ऐड टू डेलिंक्वेंसी, हम डेलिंक्वेंसी बढ़ाते हैं. कैसे? वी ईदर डू नॉट गिव एनी सॉल्यूशन और वी गिव अ रॉन्ग सॉल्यूशन. गिविंग अ रॉन्ग सॉल्यूशन इज इवन मोर रिस्की देन गिविंग नो सॉल्यूशन. जैसे पेरेंट्स में आप अक्सर देखेंगे 2, 3, 4 शिकायतों के बाद माँ ने शिकायत करी बच्चे के बारे में और अचानक एक दिन बाप ने बच्चे की अच्छी खासी पिटाई कर दी. तो दिस सडन बर्स्ट ऑफ एंगर एंड काउंटर बैलेंसिंग दैट एज अ पनिशमेंट, या कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, वो इतने हताश हो जाते हैं कि वो बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि यार अब तो भगवान ही देखेगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा क्या करें. तो कहीं ना कहीं इन 3 कारणों से हम पेरेंट्स या टीचर्स डेलिंक्वेंसी या डेलिंक्वेंट एग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं या उसे फॉस्टर करते हैं. मैं 5 तरह के बिहेवियर्स दे रहा हूँ. अभी एक एक करके मैं 5 बिहेवियर्स आपको बताता हूँ जो आपके आसपास आप रेगुलर देखते हैं. आज कोशिश करते हैं, हम तुलना करते हैं, जवाब आप अपने मन में सोच सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है और आज से 30 साल पहले इन बिहेवियर्स में क्या स्थिति थी. सबसे पहले स्मोकिंग, सिगरेट पीना. अगर आज आप एक बच्चे को कोई कहे कि ये बच्चा स्मोक कर सकता है, शिकायत है, तो शायद बहुत हैरानी नहीं होती.
बट 30 वर्ष पहले जब ये होता था तो शायद बहुत सी आईब्रोज रेज्ड होती थी। दूसरा, ड्रिंकिंग अल्कोहल। आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत से स्कूलों में ये घटनाएं घटती हैं, और मैं यहाँ के जितने भी टीचर्स इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात से प्रीवी होंगे, इस बात से एग्री करेंगे कि अक्सर जब फेयरवेल पार्टीज होती हैं तो कुछ बच्चे या ग्रुप्स वो अपनी खुद की अलग बियर पार्टी, बूज पार्टी तक ऑर्गेनाइज करते हैं। 11th-12th क्लास के बच्चे, जो कि आज से कुछ साल पहले तक, 30 साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ, तुलना करें तो शायद ये सोच पाना भी असंभव था। उस वक्त सोशल गार्ड्स इतने मौजूद थे कि अगर एक अंडर एज बच्चा ऐसा कुछ करता हुआ दिखता था तो कोई उसको टोक देता था। आज की डेट में कोई टोकता नहीं। तीसरा ऐसा पहलू है, ऐसा बिहेवियर है जो आप अपने आसपास बहुत आम तौर पर देखते होंगे, दैट इज अंडर एज ड्राइविंग। इसको अनुभव करना मुश्किल नहीं है। आज से 30 साल पहले शायद बच्चों के पास इतने साधन भी नहीं थे और इतनी यातायात के साधन उपलब्ध भी नहीं थे कि ऐसा कर पाते। बट अगर आज आप किसी भी स्कूल के बाहर सुबह जाकर खड़े हो जाएं तो आप देख सकते हैं सैकड़ों ही बच्चे अपने खुद के 2 व्हीलर्स या कई बार कार्स भी लेकर आते हैं, और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, पर उनके पेरेंट्स उनको इजाजत देते हैं फॉर वन रीजन और दी अदर। बट परहैप्स कहीं ना कहीं वहां हम परमिशन दे रहे हैं कि आप रूल तोड़ सकते हो। चौथा ऐसा बिहेवियर जो बहुत कॉमनली आप अपने आसपास देखते हैं और जो मैं 30 वर्षों के अंतराल में, जो अपनी लाइफ स्पैन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बहुत तेजी से बढ़ा है, दैट इज यूज ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना। आज की डेट में लगभग 90% बच्चे छोटी क्लास से ही गाली देना या गाली के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स को पता हो या ना पता हो। पेरेंट्स हो सकता है सोचते रहे मुझे नहीं पता, बट जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे या बच्चा आपको बताएगा तो पता चलेगा कि हमें ही लग रहा था कि बच्चे को नहीं पता, बच्चे को सब पता है। और यूज ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज विद इन द पीयर ग्रुप्स इज वेरी कॉमन, and let me tell you, it is not gender specific, both girls and boys resort to this। but आज से 30 साल पहले अगर आप कंपेयर करें, शायद भाषा की जो शुचिता उस वक्त थी, आज की डेट में वो कल्पना कर पाना भी असंभव है। पांचवा बड़ा बदलाव जो हम देख रहे हैं, जो अग्रेसिव बिहेवियर और डेलिंक्वेंट बिहेवियर का कारण बन रहा है, वो है ओपननेस टू सेक्सुअलिटी। मैं जब बच्चों के साथ काउंसलिंग करता हूँ या बातें करता हूँ तो अक्सर बहुत छोटी क्लासेस में भी मैंने सेक्सुअलिटी पे प्रश्न आते हुए देखे हैं आज के संदर्भ में। बट शायद इसी की बात करें तो 30 साल पहले ये परिदृश्य, ये बिल्कुल अलग था, सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, जहां इस तरह की शायद ओपननेस उपलब्ध नहीं थी। अब अगर हम इसी 5 बिहेवियर्स को 30 की बजाय 50 साल के कंपैरिजन में ले जाएं, तो मेरे साथ इस वक्त जो भी सीनियर्स अवेलेबल हैं, जैसे डायरेक्टर सर यहाँ भी सुन रहे हैं, तो वो शायद बता पाएंगे कि 50 साल के अगर अंतराल में इस बात की तुलना करें तो ये 5 बिहेवियर्स में जो बदलाव आया है वो और भी ज्यादा बड़ी गहरी खाई नजर आएगा। इसके अतिरिक्त मैं इन 5 बिहेवियर में जितनी गिरावट आई है, अगर उसको एक बेंचमार्क मान लें, तो उसी तरह से अगर 1-2 पॉजिटिव बिहेवियर में क्या बदलाव आया, उसको साथ में अगर इसको तुलना करें तो ये बदलाव और प्रोमिनेंटली आपको दिखाई देता है। वो 2 बिहेवियर्स हैं, रोल, रिस्पेक्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स। अगर आप आज के बच्चे का रिस्पेक्ट एंड एटीट्यूड लेवल टुवर्ड्स टीचर्स एनालाइज करें आज से 30 या 50 साल पहले वाले बच्चे की तुलना में, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसी तरह से दूसरा बिहेवियर है रोल, रिस्पेक्ट एंड अप्रोच टुवर्ड्स पेरेंट्स। तो आज के बच्चे का अपने पेरेंट्स के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो रिस्पेक्ट लेवल है, या परिवार में जो उसका रोल है, उसमें और आज से 30 या 50 साल पहले के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो 2 चीजें जो बच्चे को कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से रखती थी, अपने परिवार से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से बॉन्ड करती थी, उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और वो बिहेवियर्स जो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो बिहेवियर्स बढ़े हैं और बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो एक सेंस तो जरूर आती है और बहुत गहरे मन में एक सवाल आता है
कुछ तो है जो पिछले 30 से 50 साल में गलत हो गया। समथिंग वेंट रॉन्ग इन लास्ट 30 to 50 ईयर्स। क्या आप अपना व्यू रखना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या बदल गया?